My precious friend, मेरे अति प्रिय अनमोल मित्रों, we've been meditating on how to sanctify ourselves to honor the sacrifice of Jesus. हम इस बात पर मनन कर रहे थे कि यीशु के बलिदान को आदर देने के लिए हम कैसे खुद को पवित्र करें। As we offer ourselves as a living sacrifice to God, it becomes an aroma to God. जब हम अपने आप को परमेश्वर के लिए जीवित बलिदान करते हैं तो वो परमेश्वर के लिए हव्य सभाता है। And the Lord Jesus is pleased because that's the only way for us to praise Him and to honor Him for all that He has done to save us. क्योंकि यह एकमात्र तरीका है कि हम उनकी स्तुति और उनकी प्रशंसा करें उस काम के कारण जो उसने हमें बचाने के लिए किया है। Today we have come here to meditate on what more we could cleanse in our lives through the blood of Jesus Christ and become worthy of being God's child. और आज हम यह मनन करने के लिए आए हुए हैं कि वो कौन सी बातें हमारे जीवन में है जिन्हें हमें अपने आप को शुद्ध करना है ताकि हम परमेश्वर के योग्य संतान बन सकें। As you read Matthew 15:19, जैसे आप मत्ती 15:19 में पढ़ते हैं, Jesus gives a list of things that we need to cleanse ourselves from. प्रभु यीशु मसीह बहुत से ऐसी चीजों की सूची देते हैं जिनसे हमें अपने आप को शुद्ध करना है। He says these things make you unclean. और वो कहता है ये तुम्हें अशुद्ध करती हैं, Get rid of them उनसे तुम मुक्त हो जाओ and offer your bodies as a living sacrifice to me. और अपने शरीरों को मेरे लिए एक जीवित बलिदान करके अर्पित करो। Your body has to be my temple and it should be available only for me. तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर बनना है और वो केवल मेरे लिए ही उपलब्ध हो। And as you do that, you are honoring my sacrifice. और जब तुम ऐसा करते हो तो तुम मेरे बलिदान का आदर करते हो। Let's turn to Matthew 15:19. आइए हम निकाल लें मत्ती 15 और वचन 19। Jesus says, प्रभु यीशु कहते हैं, For out of the heart comes evil thoughts, क्योंकि मन से ही बुरे विचार निकलते हैं, murder, हत्या, adultery, व्यभिचार, sexual immorality, यौन अनैतिकता, theft, चोरी, false testimony, झूठी गवाही देना slander. और निंदा करना। Today we're going to talk about false testimony. आज हम बात करेंगे झूठी गवाही देने के बारे में। In Exodus 20 and verse 16, निर्गमन 20 और वचन 16 में God Almighty gave a commandment. सर्वसामर्थी परमेश्वर ने एक व्यवस्था दी। He said, You shall not give false testimony against your neighbor. और उसने कहा कि तू अपने पड़ोसी के लिए कोई भी झूठी साक्षी न देना। Not only giving false testimony against the neighbor, but also do not spread false reports. न केवल पड़ोसी के लिए झूठी साक्षी देना लेकिन गलत बात भी न फैलाना। Exodus 23:1. निर्गमन 23 वचन 1। Yes, many people keep talking about others. हाँ, कई लोग दूसरों के बारे में बस बातें और बातें करते हैं। And as they keep talking about others, they begin to fabricate things and they spread false reports. और जब वो दूसरों के बारे में बात करते हैं तो चीजों को छुपाते और गलत बात फैलाते। That's why the Lord says in Exodus 23:1, और इसलिए निर्गमन 23 वचन 1 में यहोवा कहता है do not spread false reports. कि तू झूठी बातें न करना Do not help a guilty person by being a malicious witness. और झूठे साक्षी बनकर के एक गलत व्यक्ति की सहायता न करना। Yes, if you are going to get a guilty person out of the hook, then what you have been speaking is false witness. अगर आप अपनी गवाही के द्वारा से एक अपराधी को छुड़ाते हैं तो आप जो कहने जा रहे हैं वो झूठी गवाही है। And you are bringing wrath on the whole community. और आप पूरे समाज के ऊपर परमेश्वर का क्रोध लाते हैं। That's why the Bible says in Proverbs 19:9, इसलिए नीति वचन 19:9 में बाइबल कहती है, a false witness will not go unpunished. झूठा गवाह दंडहीन न रहेगा। Whoever pours out lies will perish. जो भी झूठी बातें कहता है वो नाश होगा, Will perish. वो निश्चय ही नाश होगा। No one need to kill them, but they will perish. किसी को उन्हें मारने की आवश्यकता नहीं लेकिन वो नाश हो जाएंगे। Proverbs 14 and verse 5. नीति वचन 14 वचन 5 में, A false witness pours out lies. एक झूठा गवाह झूठों का पुलिंद बांधता
lies, झूठ ही झूठ, rain of lies. वो झूठ की बारिश करता है। We see that today, आज हम उसी चीज को देखते हैं, how much it destroys the spirit, the lives, the families. और ये कितना ज्यादा आत्मा को, परिवारों को, समाज को मारता है। People are affected because someone becomes a false witness and spreads false reports. लोग दुख उठाते हैं क्योंकि कोई जो है गलत बातों के द्वारा से झूठी गवाही देता है। Where does this come from? ये सब कहाँ से आता है? Jesus says in John 8:44, यूहन्ना 8:44 में यीशु कहते हैं you belong to your father the devil, कि तुम तो अपने पिता शैतान के हो and you are carrying out your father the devil's desires. और तुम अपने पिता शैतान की लालसा को पूरी कर रहे हो। He was a murderer from the beginning. वह तो प्रारंभ से एक हत्यारा है, He did not hold to the truth. क्योंकि वो सत्य पर कभी टिका न रहा या उसे ना अपनाया। There is no truth in the devil, शैतान में कोई सत्य नहीं है, always speaking false things. वो हमेशा झूठी बातें करता है, He lies, वो झूठ बोलता है, speaks his native language, वो अपनी मातृभाषा बोलता है, and he becomes a father of lies. और वो जो है झूठ का पिता बन जाता है। Yes, हाँ, if a person is spreading false reports अगर कोई व्यक्ति झूठी बातें फैला रहा है and gives false testimony, और झूठी गवाही देता है, he or she is made of the devil. तो वो स्त्री या पुरुष जो है शैतान के हैं। Yes, my friend, we have to be very careful. हाँ मेरे मित्रों, हमें बहुत सावधान रहना है, That's why the Bible says, और इसीलिए बाइबल कहती है let your yes be yes and your no be no. तुम्हारी हाँ हाँ और तुम्हारी ना जो है वो ना में ही हो। You have to speak the truth to live on. आपको जीवित रहने के लिए सत्य ही बोलना है। Look at the chief priests who are supposed to be the priests caring for the temple and for the people who come to give sacrifice for their sins to be forgiven. आप उस महायाजक को देखिए जिसका काम तो ये था कि जो लोग वहाँ आते हैं मंदिर में, उनके लिए वो जो है बलिदान करे ताकि वे जो है बचा लिए जाएं। If you read Matthew 28:12-15, अगर आप मत्ती 28:12 से 15 को पढ़ेंगे, they knew fully well that Jesus Christ rose up from the dead. तो वहाँ लिखा है वे अच्छी तरह जानते थे कि प्रभु यीशु मृतकों में से जी उठा। The soldiers who were there who saw this came and testified. जो सैनिक वहाँ थे जिन्होंने उसे देखा, आकर के उन्होंने गवाही दी। They saw the angel coming with a bright light shining. उन्होंने एक दूत को चमकदार रोशनी के साथ आते देखा था, They saw him rolling away the stone. और उन्होंने उससे पत्थर को लुढ़काते हुए भी देखा था। Of course, the Roman seal would have been broken, निश्चय ही रोमी जो मुहर थी वो टूट गई होगी, and they saw Jesus coming out alive. और उन्होंने यीशु को फिर से जीवित बाहर निकलते देखा। But when they reported this to the chief priests, लेकिन जब उन्होंने इसकी सूचना महायाजक को दी, the chief priests gave money to those eyewitness soldiers to become false witness. तो महायाजक ने पैसे दे करके उस आंखों देखी गवाही को बदल करके झूठी गवाही में बदलवा दिया। False witnesses who gave a wrong story that they were sleeping and the disciples of Jesus came and carried him away from the grave then. और उन्होंने ये झूठी गवाही दी कि जब वो सो रहे थे तो यीशु के जो चेले थे आए और वे यीशु की लोथ को वहां से उठा करके चुरा कर ले गए। This is what the chief priests asked them to lie. महायाजक ने उनसे ऐसा ही झूठ बोलने के लिए कहा, And they said, we will settle the governor also. और उन्होंने कहा कि हम अधिकारियों को भी देख लेंगे, We will satisfy him and keep you false witnesses out of trouble. हम उसको संतुष्ट करेंगे और तुम जो आंखों देखे गवाह हो, हम तुम्हें हर एक परेशानी से बचा लेंगे। Who? कौन? The chief priests. वो महायाजक स्वयं, They are the ones who produce the liars. क्योंकि यही हैं जो झूठों को पैदा करते हैं। No wonder they were used by God to bring crucifixion to Jesus Christ. और कोई आश्चर्य की बात नहीं, परमेश्वर ने उन्हें काम में लाया कि उनके द्वारा से ही प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया जाए। They could not crucify him. वो उसे क्रूस पर नहीं चढ़ा सकते, They could not put him to death. न ही उसे वो मार सकते थे। Their false witness did not stand. उनकी झूठी गवाही कहीं टिक न सकी।
God used them, God used the chief priests for his will to be accomplished to have Jesus on the cross. और परमेश्वर ने महायाजक को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए इस्तेमाल किया ताकि प्रभु यीशु मसीह जो है क्रूस पर बलिदान हो। The power of the false witness will not last. झूठे गवाहों की जो शक्ति है या सामर्थ्य ज्यादा दिन न टिकेगी। The Bible says in Mark 14:56, मरकुस 14:56 में बाइबल बताती है many testified falsely against Jesus, कि अनेकों ने यीशु के खिलाफ झूठी गवाहियां दी, but their statements did not agree. लेकिन उनके कथन आपस में सहमत Matthew न थे। 26:59 and 60. मत्ती 26, 59 और 60 वचन में The chief priests and the whole Sanhedrin were looking for false evidence against Jesus so that they could put him to death. महायाजक और जो पुरनियों की सभा थी वो झूठे ऐसे प्रमाण ढूंढ रहे थे जिसके द्वारा वो उसे मृत्यु दंड दें। The spirit of murder in a person makes that person bring up false testimony. एक हत्या की आत्मा जो है किसी व्यक्ति में झूठी गवाही उत्पन्न करने के लिए उसे प्रेरित करती है। Though they were chief priests of the temple, they were filled with the spirit of murder, lies, as from the devil. जो भी वो मंदिर के याजक और महायाजक थे, लेकिन तो भी शैतान की आत्मा जो है उनके अंदर में झूठ और हत्या के लिए उन्हें प्रेरित कर रही थी। They were looking for false evidence against Jesus to put him to death. वो यीशु के लिए झूठे गवाह ढूंढ रहे थे कि उसे वो मार डाले, But those false witnesses never prevailed. लेकिन वो झूठी गवाहियां कहीं पर भी टिक न सकीं। They could not use those witnesses to make Governor Pilate pronounce death sentence on Jesus. और वे उन झूठे गवाहों को इस्तेमाल नहीं कर सके कि उनकी गवाही के आधार पर पिलातुस जो है यीशु मसीह को मृत्यु का दंड सुनाए। Pilate said, I find no fault in this man. पिलातुस ने कहा, मैंने इस व्यक्ति में कोई दोष नहीं पाया। All these are false witnesses. They have no credibility. उसने कहा, ये झूठे गवाह हैं, इनका कोई महत्व नहीं। The governor Pilate said, I find no fault in this man, Jesus. और तब वह हाकिम पिलातुस कहता है, यीशु में मैं कोई भी दोष नहीं पाता। He knew that Jesus was handed over to him because of jealousy. वो जानता था कि यीशु मसीह को उसके हाथ में इसलिए सौंपा गया है क्योंकि बाकी लोग उससे जलन रखते थे। The chief priest had said, the whole world is following Jesus. और ये जो महायाजक था उसने कहा कि इसने तो पूरे संसार को अपने पीछे लगा लिया है, So let us murder him. इसलिए आओ हम उसकी हत्या कर दें। In order to murder him, bring false witness to the court. और उसकी हत्या कराने के लिए हमें कोर्ट में झूठे गवाह खड़े करने हैं। That's how the devil works, शैतान जो है ऐसे ही कार्य करता through है people. लोगों के द्वारा। But the judge could see that it was jealousy which was ruling them, and there was no credence to those testimonies which were false. लेकिन जज जो है इस बात को जान गया कि ये सारी बातें झूठी हैं और जो वो कह रहे हैं उसमें कोई भी सत्य नहीं। False witness will never stand. झूठा गवाह कभी भी खड़ा न हो पाएगा। But लेकिन the spirit of jealousy makes a person destroy others, and so makes him bring up false witness. जो जलन की आत्मा है दूसरों के खिलाफ में उन्हें मारने की कोशिश करती है और उसके लिए वो जो है झूठे गवाहों को लाते हैं। This need to be cleansed in each soul. और हर एक प्राण में इसका साफ किया जाना आवश्यक है। In the midst of the false witnesses coming continuously saying, he did these wrongs, so crucify him, crucify him, crucify him. जबकि झूठे गवाहियां आती जा रही थी, वो कह रहे थे उसने ये गलत किया, ये किया, इसलिए उसको क्रूस पर चढ़ाओ, उसे क्रूस पर चढ़ाओ। Jesus went on saying, Father, forgive them. यीशु ने यही कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, For they know not what they do. क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। Jealousy has blinded them to give a false witness. जलन की आत्मा ने इन्हें झूठी गवाही के लिए अंधा कर दिया है। Murderous spirit has blinded them to give a false witness. और हत्या की आत्मा ने इनकी आंखों को अंधा कर दिया है झूठी It गवाही has के लिए। transformed them into evil like their father the devil. और इसने उनके पिता शैतान की तरह इनको बुरे बना दिया है। Jesus said, forgive them. यीशु ने कहा इन्हें माफ करिए। Through his forgiveness, he longed for everyone who was bearing false witness to be transformed
और अपने क्षमा करने के द्वारा प्रभु यीशु ये चाह रहे थे कि हर एक जिसने झूठी गवाही दी उनका जीवन बदल जाए। And Jesus, through his forgiveness, made those false witnesses fools. और अपने माफ करने के द्वारा यीशु ने उन झूठे गवाहों को मूर्ख बना दिया। Proverbs 10:18. नीति वचन 10:18। Whoever conceals hatred with lying lips and spreads slander is a fool. जो बैर को छुपा रखता है वह झूठ बोलता है और जो अपवाद फैलाता है वह मूर्ख है। Proverbs 25:18. नीति वचन 25:18। Like a club or a sword or a sharp arrow is one who gives false testimony against a neighbor. जो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी देता है वह मानो हथौड़ा और तलवार और पैना तीर है। Maybe you are suffering because of this sharp arrow. शायद आप उनके पैने तीरों के कारण से दुख उठा रहे हैं। But then Psalm 27:12 says, लेकिन भजन संहिता 27 उसका वचन 12 कहता है, O Lord, हे यहोवा, do not turn me over to the desire of my foes. मेरे सताने वालों की इच्छा पर मुझे न छोड़, For false witnesses rise up against me, क्योंकि झूठे साक्षी मेरे विरुद्ध उठ खड़े हुए हैं, spouting malicious accusations. जो मेरे खिलाफ में मुझे मार डालने के लिए ऐसे ही झूठी गवाहियां देते हैं। In the last days, अंत के दिनों में we will see many of this. हम ऐसे बहुत को देखेंगे। These days you will experience this. और इन दिनों में आप इसे महसूस करेंगे। Matthew 24 and verse 10. मत्ती 24 वचन 10। At that time many will turn away from the faith उस समय अनेक लोग विश्वास से फिर जाएंगे and will betray and hate each other because of they carrying Jesus. और चूंकि वो यीशु के साथ है वे एक दूसरे के साथ धोखा देंगे। Yes, my friends, maybe you carry Jesus. हाँ मेरे मित्र, हो सकता है आज आप यीशु को लिए चल रहे हैं, You live righteously. आप धार्मिकता का जीवन जी रहे हैं, People will hate you because they are living in sin. और लोग आपसे घृणा करेंगे क्योंकि वो पाप में जी रहे हैं। They will turn away from the faith and betray वे विश्वास से फिर करके धोखा देंगे and hate you. और आपसे घृणा करेंगे। But turn your eyes on Jesus. लेकिन अपनी आंखें यीशु की ओर आप फेर लें। The Bible says in 2 Peter 2:1, दूसरा पतरस 2:1 में बाइबल कहती है, there were also false prophets among the people, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, just as false teachers among you. उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, They will secretly introduce destructive heresies, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे, even denying the sovereign Lord who brought them. और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इंकार करेंगे, They will say miracles have ceased these days, और कहेंगे आजकल चमत्कार बंद हो चुके हैं, and they will send destructive heresies in their preachings, और वे विनाशकारी झूठी शिक्षा का प्रचार करेंगे, and their preachings will be targeted on other servants of God who are used mightily by God. और उनका प्रचार जो ईश्वर के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सामर्थ्य सेवक हैं उनकी निंदा होगी। Jealousy, केवल जलन bringing murderous spirit, जो हत्या की आत्मा को लाता है, bringing false testimony in their tongue. और उनकी जीभ में झूठी गवाही को लाता Of course, they bring swift destruction on themselves. है। निश्चय ही वो स्वयं अपने ऊपर शीघ्र दंड को लेकर आते हैं। But woe unto the people who listen to them and get swayed from the gospel. लेकिन हाय उन लोगों को जो उनकी सुनते हैं और वे सुसमाचार की शिक्षा से भटक जाते हैं। Those who turn these people to destruction shall themselves be destructed. वे जो इन्हें विनाश की ओर फेर देते हैं वे स्वयं नाश होंगे। But false prophets will come. लेकिन झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, False teachers will come. झूठे शिक्षक भी आएंगे। The sign is they will be false witnesses, speaking false things and slandering God's people. That's the sign that they are false prophets and false teachers. और इस बात का लक्षण या चिन्ह ये होगा कि वे झूठे भविष्यवक्ता और शिक्षक हैं। वे जो है झूठी साक्ष्य देंगे और वे परमेश्वर के सेवकों के खिलाफ में झूठी बातें और निंदा की बातें करेंगे। A real prophet, a real teacher, without any falsification, is one who speaks only about Jesus, Jesus, Jesus. एक सच्चा भविष्यवक्ता या सच्चा शिक्षक वो है जो बिना किसी झूठ के या गलत शिक्षा के केवल और केवल यीशु और यीशु की बात करता और उसकी शिक्षा देता है।
Such a person will bring life. ऐसा व्यक्ति जीवन लाएगा। He will or she will love everybody, वह स्त्री या पुरुष जो है हर एक से प्रेम करेंगे and they will be protected by the Lord. और वे प्रभु के द्वारा रक्षा किए जाएंगे। God will protect you too. परमेश्वर आपकी भी रक्षा करेगा। And now, my friend, और अब मेरे प्रिय मित्रों, how to overcome this false testimony? हम इस झूठी गवाही पर कैसे जय पा सकते हैं? How to not fall a prey to the slandering spirit? और झूठी आत्मा के हम कैसे शिकार होने से बच सकते हैं? Read Revelation 12:11. प्रकाशित वाक्य 12:1 को पढ़ें। They triumphed over him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. वे मेमने के लहू और अपनी गवाही के वचन के द्वारा से उस पर जयवंत They हुए। did not love their lives so much as to shrink from death. उन्होंने मृत्यु से बचने के लिए अपने प्राणों से मोह नहीं किया। Yes, my friend, हाँ मेरे प्रिय मित्र, Satan shall fall as lightning. शैतान जो है बिजली की नाई गिरेगा। The one who is bearing false witness against you, हर एक जो आपके खिलाफ में झूठी गवाही दे रहा है, he shall fall as lightning. वो बिजली की नाई गिरेगा। As you carry the blood of the Lamb, जब आप मेमने का लहू को लेकर चलते हैं, being cleansed with a clean tongue to speak love, love, love of Jesus. और आप शुद्ध किए गए हैं कि अपने जीव से केवल यीशु के प्रेम को प्रचारें, And by bearing witness about Jesus, Jesus, Jesus. और केवल यीशु और यीशु की ही आप औरों के बीच गवाही दें, Not self or not condemnation of others, न तो खुद पर या दूसरों पर दंड की आज्ञा but लाएं, speaking about what Jesus has done. लेकिन जो यीशु ने किया है केवल उसकी आप बात करेंगे। Such a person will never love their life, ऐसे लोग कभी अपने प्राणों का मोह न रखेंगे, but they will only live for Jesus. लेकिन वो केवल यीशु के लिए जिएंगे। And it will make Satan fall as lightning. और इससे शैतान बिजली की तरह गिरेगा। As you go on testifying about Jesus, जब आप यीशु की गवाही देते फिरते हैं, according to 1 John 5:11, तो पहला यूहन्ना 5:11 के अनुसार you get life, आप जीवन पाते हैं, eternal life, अनंत जीवन पाते हैं, flowing into you. जो आप में बहता है, Because Jesus Christ is the life. क्योंकि प्रभु यीशु स्वयं वो जीवन है He is the light of the world. और वो इस संसार की ज्योति है And He is the resurrection. और वही पुनरुत्थान भी है। And the Bible says और बाइबल कहती है in Matthew 10:32, मत्ती 10:32 में, as we testify about Jesus on earth, Jesus testifies about us to the Almighty God. जैसे हम पृथ्वी पर यीशु की गवाही देते हैं, वैसे सर्वसामर्थी परमेश्वर को यीशु हमारी गवाही देता है। And the Lord is always with us. और प्रभु हमेशा हमारे साथ है। The crucified Savior with His wounds in His body is always with अपने us. शरीर पर घावों के साथ क्रूस पर चढ़ा वो उद्धारक हमेशा हमारे साथ He says, "My child, I have been wounded through the slanders and the false testimony of the people, but I am alive as the King of Kings." वो कहता है, मेरे बच्चे, मैं तो लोगों की झूठी बातों और झूठी गवाही के द्वारा से चोटिल हूँ, लेकिन आज मैं राजाओं के राजा के रूप में जीवित हूँ। But today I am alive as the Lord of Lords and King of Kings. और आज मैं राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के रूप में जीवित हूँ। As you bear my testimony that you are my child. और जब तू गवाही देता है कि तू मेरी संतान है, As you carry my word of salvation, और मेरे उद्धार के वचन को लेकर चलता है, you shall also reign supreme. इसलिए तू भी सर्वोच्च राज्य करेगा। No false witness shall overcome you or put you down. कोई भी झूठी गवाही तुझे न नीचा दिखाएगी न तुझे खत्म करेगी। It will be justified and avenged by my sacrifice on the cross. क्योंकि क्रूस पर मेरे बलिदान के द्वारा उसका पलटा लिया जाएगा। What a joy to serve Jesus. यीशु की सेवा करना कितने आनंद की बात है। You will never have false testimony, but you will speak the truth, and the truth will set you free. क्योंकि तुम कोई झूठी गवाही नहीं दोगे, लेकिन सत्य का प्रचार करोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। Father, पिताजी, you have said they shall speak in new tongues. आपने कहा है कि वो नई भाषाओं में बोलेंगे। Today we pray that
The Holy Spirit will make us speak in new tongues, the tongues of God. आज हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा हमसे नई भाषाएं, परमेश्वर की भाषा में बुलवाए। Help us to speak the mysteries and the wonders of God. हमारी सहायता करें कि हम परमेश्वर के भेदों और रहस्यों को बोलें। Never looking to any man or woman. किसी स्त्री या पुरुष को कदापि न देखें। And as we lift you up, और जब हम आपको ऊंचा उठाते हैं प्रभु, Satan shall fall as lightning. शैतान स्वयं बिजली की तरह He गिरे shall be crushed under our feet. और वो हमारे पांव तले कुचला जाए And we shall enjoy your life. और हम आपके जीवन का आनंद लें। Let this grace increase even now. होने दें अभी यह अनुग्रह हम में बढ़े, In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमीन।